کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، حل کیا ننبئکم ہم بتائیں تمہیں، خبر دیں تمہیں، بالاخسرین خسارہ پانے والوں کی، نقصان اٹھانے والوں کی، اعمال کے اعتبار سے۔ جی یہاں جہاں پہ بھی قرآن پاک میں لفظ کل استعمال ہوتا ہے نا، تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو اعمال کے حوالے سے خسارہ پانے والے میں سے ہیں، یعنی جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ الذین وہ لوگ جو کہ ضلع ضائع ہو گئی، سعیہم کوشش ان کی، سعی سے ہے یہ لفظ، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وہم اور وہ سب، یحسبون وہ سب گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حساب کتاب سے یہ لفظ، انہم یہ کہ بے شک وہ، یحسنون اچھا کر رہے ہیں، صنع کام۔ اگلی آیت کون سی ہے؟ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے یہ سورت شروع کی تھی نا، تو سورت کے بالکل شروع میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ زینت ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ احسن عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں ایک آیت وہ ہے جو سورت کے بالکل شروع میں آئی ہے، ایک آیت یہ ہے جو سورت کے بالکل آخر میں آئی ہے، یعنی یہ انٹر لنکڈ ہے آیات، کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مگن ہوئے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے وہ رد ہے، ضائع ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، تو جیسے سر گنگا رام کا آپ نے نام سنا ہوگا، گنگا رام جو ہے وہ ہاسپٹل بھی ہے، یہاں ہیلی کالج آف کامرس جو ہے وہ گنگا رام نے جو ہے اپنے گھر کی بلڈنگ جو ہے وہ دے دی تھی کہ یہاں کالج چلایا جائے۔ گنگا رام کا نام تو آج تک جو ہے وہ دنیا سن رہی ہے، لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ اس کی جو کوششیں ہوں گی وہ بالکل ضائع ہوں گی، یعنی اس کو آخرت میں جو ہے اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اسی مضمون کو جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ غاشیہ میں آتا ہے، حل عطا کا حدیث غاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر؟ غاشیہ کہتے ہیں قیامت کو، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یعنی کام انہوں نے بہت زیادہ کیا ہوگا، اتنا زیادہ کیا ہوگا کہ وہ تھک چکے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، اور لیکن وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھیے گا عمل وہی قبول ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر ہم ایک رکعت میں 2 سجدوں کی بجائے 6 سجدے کر لیں تو کیا ہماری رکعت وہ ایکسیپٹ ہوگی؟ نہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں سر، سجدے کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے؟ سر اس کا حکم نہیں ہے۔ جی یہ سنت طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے نہیں دکھایا۔ تو چاہے جتنا مرضی اچھا کام آپ کر لیں، لیکن اگر اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مہر نبوت نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، رد کیا ہوا ہے۔ چاہے ہم عشق میں آ کے جو ہے وہ اپنے بازار سجا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، تو یہ کام مردود ہے، رد کیا ہوا، یاد رکھیے گا۔ تو وہ لوگ انہوں نے کوششیں کی ہوں گی فی الحیات دنیا، وہم یحسبون، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اعمال کے حوالے سے خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک تو اس آیت کا یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اگلی اس سے ایڈجسٹنٹ آیت کی اگر ہم بات کریں، اس سے نیکسٹ آیت میں اولئک الذین کفروا، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت، پس ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فلا نقیم، پس نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے،
यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन वजना वजन कोई मिजान। यानी ये कौन लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अल्लाह ताला की आयात का, अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया और अल्लाह ताला की मुलाकात का इनकार किया। फहाबितत आमालुहुम, तो जाया हो गए उनके अमाल। हबत जो है ना, हबूत, लफ्ज हबूत होता है। हबूत उस जानवर को कहते हैं जिसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया हो, यानी ऐसा जानवर जिसने जो है वो कोई जहरीली किस्म की घास फूस खा ली हो और वो घास फूस, जहरीली घास फूस खाने की वजह से उसका पेट फूल गया हो और मालिक उस जानवर को देख के बड़ा खुश होता है कि ये तो बड़ा जो है वो सेहतमंद जानवर बन गया है, लेकिन अल्टीमेटली उसका अंजाम क्या होगा? उस जानवर का अंजाम मौत होगा। तो फहाबितत से मुराद ये है कि अमाल उनके ऐसे होंगे जैसे फूले हुए होंगे, लेकिन उनके अमाल, उनके लिए जो है फला नुकीमु, उनके लिए कायम नहीं होगा, लहुम, उनके लिए कायम नहीं होगा, यौमल क़यामती वजना, क़यामत वाले दिन उनके लिए तराजू कायम नहीं होगा। देखें, एक तरफ जो है उसकी सारे दुनिया के अमाल हैं, जितने भी उसने कोशिशें की हैं, और दूसरी तरफ जो है वो शिरक है, कुफर है, तो उसके लिए तो जो है वो वजन कायम करने की जरूरत ही नहीं है ना। यानी पलड़े, वजन तो उसके लिए कायम होगा जब दोनों पलड़ों में कुछ होगा। जब एक ही पलड़े में सब कुछ है और वो कुफर का पलड़ा है और ईमान के पलड़े में कुछ नहीं है, तो वजन और तराजू कायम करने की जो है वो वजह जो है वो सामने भी नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके लिए जो है वो क़यामत वाले दिन तराजू कायम नहीं किया जाएगा। ज़ालिका, ये जज़ाउहुम, जज़ा है उनकी, बदला उनका, सजा उनकी, जहन्नमु, जहन्नुम, बिमा, इस वजह से कि कफरू, उन्होंने कुफर किया, वत्तखज़ू, और उन्होंने बना लिया, आयाती, मेरी आयात को, व रुसुली, और मेरे रसूलों को, हुज़ुवा, मजाक। जी, इसमें बताया जा रहा है कि ये उनकी जजा है क्योंकि उन्होंने जो है वो कुफर किया है। ये जहन्नम जो है वो उनकी सजा है और मेरी आयात को और मेरे रसूलों को जो है वो मजाक का जो है वो निशाना बनाया उन्होंने। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और उन्होंने नेक अमाल किए, कानत होंगे, लहम, उनके लिए, जन्नातुल फिरदौसी, जन्नतुल फिरदौस, यानी फिरदौस के बागात, नुज़ुलन, ज़ियाफत, मेहमान नवाजी। जी, कुरान का ये उसलूब है कि जहाँ कुरान जो है वो डराता है वहाँ जो है वो कुरान खुशखबरी भी देता है। तो ये खुशखबरी की आयत है कि जो लोग ईमान लाएंगे और अमले साले करेंगे उनके लिए जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। इतनी बड़ी कायनात है, पता नहीं कितने सियारे हैं जो हमें जो है वो हमारी पहुंच से दूर है, पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो जन्नतें बनानी है। और कहा जाता है कि जो निचले दर्जे का जन्नती होगा जब अपने ऊपर वाले दर्जे के जन्नती को देखेगा, ऐसे देखेगा जैसे सितारे को देखा जाता है। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो है वो सियारों में, सितारों में जो है वो अपनी जन्नतें बनाई हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं। खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फिहा, इसमें, ला यबगूना, नहीं वो सब चाहेंगे, अनहा, इससे, हिवाला, जगह बदलना, कहीं और जाना। जाहिर सी बात है, इतनी मेहमान नवाजी में कौन जो है वो जगह बदलना चाहेगा। तो जन्नत, अल्लाह ताला हमें जो है वो हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। कुल, आप सल्लम कह दीजिए, लो, अगर, कानल बहरु, हो जाए समुंदर, मिदादन, रोशनाई, स्याही, लिकालिमाती, वास्ते बातों के, रब्बी, मेरे रब की, लनाफिदल बहरु, अलबत्ता खत्म हो जाए समुंदर, कबला, पहले, अन तनफदा, ये कि खत्म हो, कालिमातु, कलमात, बातें, रब्बी, मेरे रब की, वलो, और अगरचे, जीना, हम ले आए, बिमिस्ली ही, इसकी मानिल, मददा, मजीद मदद, रोशनाई, समुंदर का पानी। जी, इंसान होने के नाते हमारे जो है वो इल्म में ये बात है कि 7 समंदर हैं। तो 7 समंदर जो हैं वो अगर स्याही बन जाएं और जितने भी दरख्त हैं उनकी हम कलम बना लें और अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात लिखना शुरू कर दें। कलिमात से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के इजाबात हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कारनामे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया तख्लीक की है वो चीजें हैं। अगर हम जो है वो उस समंदर के पानी से अल्लाह ताला की कलिमात लिखना शुरू कर दें तो वो समंदर का पानी भी थोड़ा पड़ जाए। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसके बाद भी अगर जो है वो उसी तरह के 7 समंदर मजीद आ गए
تو اللہ ताला के कलिमात जो हैं वो फिर भी लिखे नहीं जा सकते। यानी अल्लाह तबारक व ताला के इतने एहसानात हैं हम पर, अल्लाह तबारक व ताला के जो है वो इतने कारनामे हैं इस कायनात में कि हम उनको लिख नहीं सकते। ये तमसील के लिए अल्लाह ताला ने जो है बाहर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारी इंसान होने के नाते हमारी नजर में समंदर जो है वो बहुत बड़ा ज़हीरा है पानी का। तो अगर उसको स्याही बना दिया जाए तो अल्लाह ताला, और उससे अल्लाह ताला की कलिमात लिख दिए जाएं तो अल्लाह ताला की कलिमात जो है वो लिखे नहीं जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएगा। कुल आप सल्लम कह दीजिए, इन्नमा बेशक सिर्फ अना मैं बशरुन बशर हूँ, इंसान हूँ, मिसलुकुम तुम्हारी ही तरह, यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, अन्नमा ये के बेशक, इलाहुकुम माबूद तुम्हारा, इलाहुम वाहिदुन एक ही माबूद है। जी, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप सल्लम कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह का इंसान हूँ। देखें यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करते हैं ना कि नबी सल्लम हमारी तरह के बशर हैं, तो लोग जो है वो फतवा दे देते हैं कि जी इस शख्स ने जो है वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी की। नबी अलैहिस्सलाम, देखें दुनिया में इंसान बशर बसते हैं, तो बशर की रहनुमाई के लिए किसी बशर का आना ही जरूरी था। दुनिया में अगर फरिश्ते बसते तो फरिश्तों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को रसूल बना के भेजते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप इनको कह दीजिए कि मैं तुम्हारी की तरह का एक बशर हूं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है यूहा इलैया, कि मेरी तरफ वही आती है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो वही नाजिल होती है। फर्क यह है कि नबी अलैहिस्सलाम का राब्ता अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ है। और क्या कह दीजिए, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा मबूद जो है वो एक मबूद है, याद रखना। अगली आयत क्या है इससे? फमन काना पस जो कोई है, यरजू उम्मीद रखता, लिका मुलाकात की, रब्बी ही अपने रब से, फल यामल पस चाहिए कि वो अमल करे, अमलन अमल, सालिहन नेक, वला युशरिक और ना वो शरीक बनाए, भी इबादती साथ इबादत के, रब्बी ही अपने रब के, आहदन किसी एक को। यानी ये लोगों को बता दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मेरी तरफ वही नाजिल होती है और तुम्हारा मबूद एक मबूद है। और जो ये उम्मीद रखता है ना कि अपने रब से उसने मुलाकात करनी है, तो वो अमल करे, साले नेक अमल करे, वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, और किसी को जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में जो है वो शरीक ना ठहराए। देखें, शरीक ठहराने के लिए जो है ना वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो अल्लाह तबारक व ताला को अलूहियत से नीचे कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर जो है वो अल्लाह के शरीक बनाए जा सकते हैं, या अल्लाह तबारक व ताला का जो मर्तबा है वो वही रहने दिया जाए और उसके साथ किसी को अल्लाह तबारक व ताला की जात के साथ ऊपर लेके जाया जाए। तो ये भी शरक है, याद रखिएगा। जैसे जो है ना आपको एक शेर जो है वो अब नाउज़ुबिल्लाह पढ़ा जाता है, बाद लोग कहते हैं वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी शेर में ये कहा जाता है कि जो अर्श पर जो है मुस्तवी है ना अल्लाह, वही मदीने में मुस्तफा बनकर आ गया। तो ये जो है ना ये सरीहन शिरक है। और अमूमन हम जो है वो अजान, जो हमारी कुछ मसाजिद ऐसी हैं जिसमें अजान से पहले कहा जाता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर। हालांकि अल्लाह के नूर में से नूर नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तो यकता है अपनी जात में, अल्लाह जो है वो अकेला है, वाहिद है अपनी जात में। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो बशर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो नूरानियत उनकी ये है कि वो रूहानियत के हवाले से है कि वो कुरान पाक लेके आए और ये कुरान पाक नूर है, ये अल्लाह का कलाम है। जी, मेरा ख्याल है कि मैंने अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिया। तो हमें जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर सूरह यूसुफ में भी आता है कि अक्सर लोग जो है वो ईमान लाने के बाद भी शिरक करते हैं, याद रखिएगा। ये सूरह यूसुफ की आयत है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो हम ये पढ़ चुके हैं। तो हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शिरक से बचना है, छोटे से छोटे शिरक से भी हमने बचना है। याद रखिएगा, शिरक की माफी नहीं है, बाकी हर गुनाह की जो है वो अल्लाह तबारक व तआला माफी दे सकते हैं। यहाँ पर सूरह काफ का तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह हम जो है वो शुरू करेंगे सूरह राद इंशाअल्लाह।